ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன். और प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ. எல்லாரும் ஆண்டவருடைய அன்பு அறிஞ்சிடணும், எல்லாரும் ஆண்டவருடைய அன்பு தெரிஞ்சுக்கிடணும். और हर एक जन क्या है परमेश्वर के प्रेम को समझना है. ஆண்டவருடைய அன்பு அறியணும் தான் அவங்க பிள்ளைகளை நம்ம கூட்டிருக்கோம் இன்னைக்கு. और परमेश्वर को प्रेम को जाने इसीलिए मैंने उन्हें बुलाया है. இந்த வாரம் வாழ்ற நாட்கள் கொஞ்ச நாட்கள் தான். और यहाँ पे जीने वाला समय जो है थोड़े दिन के लिए है. வேதம் சொல்லுது, பைபிள் சொல்லுது ஒரு மனுஷன் ஆயுசு நாட்கள் 70 வருஷம் தான். और वचन कहता है कि एक मनुष्य का जीवन का जो साल है वो 70 साल तक है. ஆனா 80 வருஷம் வாழ்ந்தாலும் 80 வருஷம் வாழ்ந்தாலும் பாடு வேதனை தான். और फिर भी 80 साल तक यदि जिले वहाँ पे चाहे उन्हें कष्ट उठाना है. ஒரு வாழ்க்கை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற ஒரே வாழ்க்கை தான். और परमेश्वर ने एक ही जीवन हमें दी. வேற ஒரு வாழ்க்கை இல்ல. और एक और कोई जीवन नहीं है हमारे पास. எந்த பணமும் மனுஷனை காப்பாத்தாது. और कोई भी धन दौलत जो है एक मनुष्य को बचाएगा. எந்த பதவியும் மனிதனை காப்பாத்தாது. और कोई भी नौकरी या काम जो है एक मनुष्य को बचाएगा. நாட்டு பிரசிடென்ட்டா இருந்தாலும் பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தாலும் மனுஷனை காப்பாத்தாது. और इस देश के प्रधानमंत्री या कोई भी अधिकारी वो क्या है एक मनुष्य को बचा नहीं पाता. ஆண்டவர் அன்பு தான் மனுஷனை காப்பாத்தும். परंतु परमेश्वर का प्रेमी है जो एक मनुष्य को बचा सकता है. மனுஷன் பிறப்பதும் இறப்பதும் நியாய தீர்ப்பதும் ஒரு மனுஷன் மேல விழுந்த கடமை. और एक मनुष्य का पैदा होना और उसका मृत्यु होना और उसका न्याय होना परमेश्वर के हाथ में है. அதனால தான் நம்ம அந்த அன்பு அவங்க தெரியணும் அவங்கள வர சொன்னது. और इस प्रेम को जानना है इसीलिए मैंने उन्हें बुलाया है. அவங்களுக்கு ஒரு பொக்கே கொடுக்க போறோம். और उनके पास हम एक किताब को भी देंगे. பாஸ்டர்மா தான் இருக்காங்கல்ல, पास्टर माँ है यहाँ पे. அப்ப இந்த அம்மா கூப்பிடுங்க. और हम इस बहन को बुलाएंगे. ராஜஸ்தான் அம்மா. और राजस्थान से जो बहन आए हैं उन्हें बुलाएंगे. ज्योति अम्मा, ज्योति वेलकम. और बहन ज्योति आप जो है आगे आ जाएं. கரங்களை தட்டுங்க. கிளாப்ஸ் கிளாப் கிளாப். तालियां बजाएं. प्लीज कम. भाई आप भी आगे आ जाएं. क्लैप्स प्लीज. आइए हम उनके लिए भी तालियां बजाएंगे. नहीं पूरा ரொம்ப சந்தோஷம். बहुत ही आनंद की बात. இந்த சர்ச்சுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். और इस कलीसिया में आप आए इसमें मैं आनंदित हूँ. அது ஒரு ஃபெய்த் விசுவாசத்துல வளரக்கூடிய சர்ச்சுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். और आप विश्वास को पकड़ ले वो आपके जीवन के लिए இந்த உலகத்துல நீ ஒண்ணும் கொண்டு போக முடியாது. और इस संसार से आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते. ஆண்டவருடைய அன்பு மாத்திரம் தான் கொண்டு போக முடியும். परंतु केवल परमेश्वर का प्रेम ஆண்டவர் அன்பு தான் உன்னை வழி நடத்தும். और परमेश्वर का प्रेम आपकी अगुवाई அதுதான் வாழ்க்கை சந்தோஷத்தை தரும். और वही आपके जीवन में आनंद को भी देगा. हालेलुया हालेलुया. வேதத்தில் ஒரு வசனம் சொல்லுது. और वचन में बाइबल में एक वचन कहता है. ஏசாயா தீர்க்கதரிசி 43 அதிகாரத்துல यशायाह नबी की पुस्तक उसके 43वीं अध्याय 21 वचन சொல்லுது. और 21वीं वचन कहता है. இந்த ஜனத்தை நான் எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன். और इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है. இவர்களின் துதியை சொல்லி வருவார்கள். और ये मेरे स्तुति को गाते हुए आएंगे. அதுக்கு தான் ஆண்டவர் இந்த ஜனங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கார். और इसीलिए परमेश्वर ने इस जाति को बनाया है. அருமையான ஐயா சொன்னாங்க, இந்த பிள்ளைகள்லாம் வந்து பாரம்பரியமான கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க இல்லை. और भाई हमारे बीच में बता रहे थे कि ये जो है पूरा पीढ़ी पर पीढ़ी मसीह परिवार से पैदा होके नहीं आए हैं. பலவிதமான பாடுகள், और कई सारे कष्ट, பலவிதமான கஷ்டங்கள், कई सारे नष्टों को लेके பலவிதமான வேதனையில வாழ்ந்த மக்கள், और कई सारे दुखों में जीते हुए. ஆண்டவர் அன்பு தெரிஞ்சு, और जब परमेश्वर के प्रेम को जान लिया, இப்படி ரட்சிக்க ஆண்டவர் உண்டு என்பதை தெரிந்து, और इस प्रकार से उद्धार करने के लिए एक परमेश्वर है करके इस बात को जान के, இப்படி விடுதலை தரக்கூடிய தெய்வம் ஒருத்தர் உண்டு என்று அறிந்து, और इस प्रकार से उद्धार देने वाला एक परमेश्वर है इस बात को जान के, ஆண்டவர் அறிஞ்சு வந்திருக்காங்க. और परमेश्वर को जान के वो आए हैं. எல்லாரும் ஆண்டவருடைய அன்பு அறியணும். और हम सभी परमेश्वर के प्रेम को जानना. ஆண்டவருடைய அன்பு தெரியுது மாத்திரமல்ல, மெய்யான ரட்சகர் இயேசு என்பது எல்லாரும் தெரியணும். और परमेश्वर का प्रेम को जानना ही नहीं परंतु सच्चा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है इस बात को भी हमें जानना है. அதற்கு தான் கண்ணீர்ல பலவிதமான கஷ்டத்துல ஒரு ஃபெய்த் கதீட்ரல் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. और इसी के बीच में कई सारे कष्टों के बीच में आंसू के बीच में यहाँ पे कलीसिया जो है कैथेड्रल को बनाते आ रहे हैं. வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், சங்கீதம் 34:5 வாசிக்கும் போது, और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं वचन संहिता में
அவரை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் பிரகாசமடைந்தன. और 34वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जो भी उसकी ओर देखता है उसका मुंह जो है चमकता है வெட்கப்பட்டு போனதில்லை. और वो कभी निराश नहीं நீ அவரை होते நோக்கி हैं। பார்க்கும்போது और जब आप उसकी ओर देखते हैं, ஆண்டவர் வெட்கப்படுத்த மாட்டார். परमेश्वर कभी आपको निंदा नहीं करेंगे। நீ எவ்வளவுதான் வசதியா வாழலாம், और आप कितना भी अच्छे जी लें எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான காரோட வாழலாம், और कितना महंगा गाड़ियों के साथ भी जी लें, ஹெலிபேட் பேட் வீட்டில் வச்சு ஹெலிகாப்டர்லேயே போகலாம், और हेलीपैड घर पे रख के हेलीकॉप्टर के साथ भी आप जी लें, 3000 கோடி கொடுத்து ஃப்ளைட் வாங்கலாம், और 3000 करोड़ दे के फ्लाइट भी खरीद सकते हैं, 8000 கோடி கொடுத்து ஃப்ளைட் வாங்கலாம். और 800 करोड़ दे के भी आप फ्लाइट खरीद அது सकते உன்னை हैं, காப்பாத்தாது. परंतु वो आपको बचाएगा नहीं। ஆண்டவர் அன்பு மாத்திரம் தான் காப்பாற்றும். परंतु परमेश्वर का प्रेम एक ही है जो आपको बचा ஆண்டவர் தான் सकता है, பாதுகாக்க முடியும். और परमेश्वर ही आपको सुरक्षा दे सकते हैं। பணங்கள் கொஞ்ச நாளைக்கு தான், பணம் கொஞ்ச நாளைக்கு தான், और पैसा धन दौलत क्या है, थोड़े दिन के लिए है, அழகு கொஞ்ச நாளைக்கு தான், और खूबसूरती भी थोड़े दिन के लिए படிப்பு है, கொஞ்ச நாளைக்கு தான், और पढ़ाई भी थोड़े दिन के लिए है, எதுவுமே கூட வராது. और कोई भी आपके संग ஆனா नहीं ஆண்டவர் आएगा, அன்பு மாத்திரம் கூட வரும். परंतु परमेश्वर का प्रेम आपके संग आएगा। அது மாத்திரம் நம்ம வாழ்க்கையில அறியணும். और इसी बात को हमें जानना है हमारे जीवन में। கடந்த மாதம் और बीते हुए महीने में, நான் திருநெல்வேலியில் ஒரு சர்ச்சுக்கு போயிருந்தேன். और मैं तिरुनेलवेली में एक कलीसिया में गया हुआ था, ஆர்சி சர்ச், ரோமன் கத்தோலிக் சர்ச். और रोमन कैथोलिक चर्च था वो, அங்கே ஒரு தம்பதி வந்தாங்க, ஒரு ஃபேமிலி வந்தாங்க என்ன பார்க்க. और वहाँ पे एक पति पत्नी मुझे देखने के लिए आए हुए थे, அவர் ஹிந்து கோயில் தர்மபர்த்தா, और वो हिंदू जो मंदिर है उसमें वो पुजारी அந்த थे, ஊர் பிரசிடென்ட். और उस जगह के उस स्थान के वो प्रेसिडेंट भी थे, ஆனால் வேதனை, परंतु वहाँ पे कई सारे कष्ट பணத்தோடு थे, வாழ்ந்தார், பணத்தோடு வாழ்றார், और बहुत सारे धन दौलत के साथ वो जी रहे थे, பதவியோடு வாழ்றார், और अच्छे पद के साथ वो जी रहे थे, வசதியான வாழ்க்கை வாழ்றாரு. बहुत ही अच्छा जीवन उनका था, ஆனா ரெண்டு கரங்களும் வரல, தூக்க முடியல, परंतु उनका दोनों हाथ को वो उठा नहीं सकते ரொம்ப हैं। கஷ்டம், बहुत ही कष्ट था उनके जीवन ரொம்ப में, வேதனை. और बहुत ही दुख था उनके जीवन पे। அதுக்கு முந்தைய மாதம் நான் அங்கே செல்லுகிறேன்னு சொல்லி என்னை பார்க்க வந்தாங்க. और उससे पहले महीने वो क्या है ऐसे कह रहे थे मैं वहाँ पे आऊँगा करके, அந்த ஃபாதர் சொன்னாங்க, ஐயா உங்களுக்கு ஜெபம் பண்ணணும், நீங்க அதுக்கு தான் வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. और वहाँ के पासवान ने ऐसा कहा आप इन दोनों के लिए प्रार्थना करें, इसीलिए वो यहाँ पे आए हुए हैं நான் ஒரு करके। கிளாஸ்ல தண்ணீர் வாங்கினேன், और मैंने एक गिलास में पानी लिया, அது ஜெபம் பண்ணேன். मैं उसे प्रार्थना में என்ன ஜெபம்னு சொல்லி தெரியுமா? और वहाँ पे मैंने क्या प्रार्थना की आप जानते हैं? 2 ராஜாக்கள் 5ஆம் அதிகாரம் வாசிக்கும் போது और दूसरा इतिहास में दूसरा राजाओं में जब आप देखते ஒரு हैं, நாகமான ஒரு மனுஷன் வாழ்ந்தா, वहाँ पे नाहमान करके एक व्यक्ति जी रहा था, சீரியா நாட்டுடைய ராணுவ கேப்டன். और वो जो है सीरिया देश का जो सेना है उसका जो है वो अगुवाई करता है उसे, அவனுக்கு குஷ்டம், और वो जो है कोढ़ी था, தீண்டத்தகாத நோய், और वहाँ पे कोई उसके पास नहीं जाता, யாரும் அவனை பார்க்க மாட்டாங்க. कोई भी उसे देखते नहीं है, குஷ்டம். और वो एक कुष्ठ रोगी था। அந்த வீட்டில் और उस घर पे ஒரு இஸ்ரேல் பெண் வேலை செய்தா. वहाँ पे इजराइल की एक लड़की जो है काम करती அவ है, வந்து சீரிய நாட்டு படைகள் இஸ்ரேல் தேசம் சண்டை பண்ணும்போது அங்கிருந்து அந்த பெண்ணை அடிமையாக கொண்டு வந்தாங்க. और जब सीरिया के देश वाले जब ये इजरायलियों के साथ युद्ध कर रहे थे उस समय में उस लड़की को उन्होंने बंदी करके लेके அவள் ஆண்டவரை அறிந்த மனுஷி. और वो क्या है परमेश्वर को जाने हुए एक स्त्री थी, அவ தன் எஜமானிட்ட சொன்னா, और वो अपने मालिक से ऐसा कहा, என் எஜமான் और मेरा मालिक இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு போவாரானா, यदि आप इजराइल देश जाएंगे அங்க ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்காரு, वहाँ पे एक भविष्यवक्ता है, அவர் மூலமா இவருடைய நோய் சுகமாகும் சொன்னா. और उनके द्वारा आपकी बीमारी चंगी हो जाएगा करके। அவள் தன் புருஷன்ட்ட சொன்ன உடனே, और जब उसने अपने मालिक से कहा, புருஷன் ராஜாட்ட சொன்னா, और वो अपनी वो पत्नी वो क्या है वो राजा से कहता, ராஜா நீ சரி போகலாம்னு சொல்லி ஒரு கடிதம் கொடுத்தான். और फिर उसके बाद राजा जो है एक पत्र लिख के देता है कि तू जा करके, அந்த கடிதத்தில் என்ன எழுதி இருந்தது? और उस पत्र में क्या लिखा हुआ என்ன था, கேப்டன் அனுப்பியிருக்கேன், என்னுடைய கேப்டன் அனுப்பியிருக்கேன், और मेरे सेनापति को मैंने भेजा है, நீ அவன் குஷ்டத்தை விடுதலை பண்ணி அனுப்புன்னு சொன்னா. और उसकी कुछ रोग से तू उसे आजाद कर दे करके। ராஜாவுக்கு பயங்கரமான வேதனை. और राजा बहुत ही संघर्ष में था। ஒரு மனுஷனை குஷ்டத்தை யார் விடுதலை பண்ண முடியுமா? और एक कुष्ठ रोगी को कोई आजाद कर सकता है आप जानते हैं? இவன் விடுதலை பண்ணி அனுப்புன்னு சொல்லி கடிதம் அனுப்பியிருக்கான். और या आप यहाँ पे देखें तो वो एक पत्र लिख के भेजता है कि तू उसे उसके कुष्ठ रोग से आजाद कर दे करके। கொல்லவும் அழிக்கவும் தேவனான்னு சொன்னான். और वहाँ पे क्या मारने के लिए नाश करने के लिए मैं क्या परमेश्वर हूँ करके। இந்த செய்தி அங்க இருக்க தீர்க்கதரிசி காதுல விழுந்தது. और ये संदेश जो है वहाँ पे जो भविष्यवक्ता था उसके कानों में पड़ा। அந்த தீர்க்கதரிசி சொன்ன ஒரு வார்த்தை, और जो भविष्यवक्ता ने एक शब्द அவனுக்கு क्या என்னட்ட कहा, அனுப்பு, उसे मेरे पास भेज। இஸ்ரவேல் தேவன் ஒருவர் உண்டென்பதை அறிந்து கொள்ளட்டும்னா. और वहाँ पे वो कहता है इस्राएल का एक परमेश्वर है तू उसे जान ले करके। ஒரு எண்ணத்தோட அனுப்ப சொன்னா.
और उसके साथ उसे भेजने के लिए இவன் அந்த कहा। ராணுவ படையோடு போயிட்டு போனான் தீர்க்கதரிசிட்ட वो अपनी सेना के साथ वो क्या है इजराइल देश में आता है தீர்க்கதரிசி ஒரு வார்த்தையும் சொல்லல और भविष्यवक्ता ने एक भी शब्द नहीं कहा। யோர்தான் நதி ஓடுது யோர்தான் நதி பக்கத்து நதி ஓடுது और यहरदान की नदी चल रहा है बगल पे, அதுல போய் முழுக சொல்லு 7 தடவை முழுக சொல்லுடா तो वहां पे जाके 7 बार डुबकी मार करके कहा। மாமிசம் சிறுபிள்ளையின் மாமிசத்து போல மாறிடும் और आप देखें तो जब वो कहता है कि तेरा वजन जो है एक नन्हा सा शिशु जो है उसके समान बदल जाएगा। ஆனா இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே அவனுக்கு நாகமானுக்கு ரொம்ப கோபம்। परंतु जब नाहमान इस शब्द को सुनता है वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है அவன் நினைச்சான் ஏதோ மந்திரம் பண்ணுவான், और वो सोच रहा था कि कोई मंत्र तंत्र ஏதோ करेंगे சாலங்க करके பண்றான், और कुछ करेंगे करके ஏதாவது செய்வான் நினைச்சு நான் வந்தேன்। और कुछ ना कुछ मेरे लिए करेंगे करके ऐसे இவன் सोच के யோர்தான் मैं போய் आया। 7 தடவை முழுக சொல்றானே, परंतु ये कह रहा है कि मैं जाके यरदन नदी में என் डुबकी நாட்டு मारूं நதி करके। ஆர்பார் பர்வா நதி விட விசேஷமான நதியான்னு சொன்னான்। क्या मेरे देश की जो नदी है उससे खास नदी है क्या ये करके। அவனுக்கு கையில கொடுக்க உதவி செய்யக்கூடிய அசிஸ்டன்ட் சொன்னா, और उसके साथ जो उसे संभालता था उसने उससे ऐसा कहा, ஐயா ஒரு பெரிய காரியத்தை சொல்லியிருப்பானா, और उन्होंने एक बड़ा बातों को बताया நீ होगा तो செய்வீர் அல்லவா, आप करेंगे ना। ஒரு சிறிய காரியம் சொன்னா, एक छोटी सी बात को आपको 7 बताया தடவை है। முழுகிடுதான் தண்ணி நீ நதியில முழுதான் சொன்னா, और उन्होंने कहा यरदन नदी में बस இது डुबकी சிறிய मारने காரியம் के தானே, बताया। இது சிறிய காரியம் தானே, एक छोटी सी बात है, இது செய்யலாமே சொன்னா। ये आप कर सकते हैं ऐसा இந்த उसने कहा। வார்த்தையை கேட்ட உடனே போய் 7 தடவை முழுகிறான்। और इस शब्द को सुनने के बाद नामान जाके 7 बार डुबकी அவன் मारता है। மாம்சம் சிறுபிள்ளையின் மாம்சத்தை போல மாறிட்டு, और जब आप देखते हैं उसका शरीर जो है एक नन्हा सा அப்பதான் शिशु के समान बदल जाता है। அப்பதான் சொன்னா இஸ்ரவேலின் தேவனை தவிர வேற தேவன் உலகத்தை இல்லேன்னு சாட்சி சொன்னான்। और तभी जाके वो इस बात की गवाही कहता है कि इज़राइल के परमेश्वर के जैसा कोई और परमेश्वर नहीं है। கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்பாக और थोड़े दिन पहले நான் கன்னியாகுமரி போயிருந்தேன்। मैं कन्याकुमारी गया हुआ था। கன்னியாகுமரி எங்க ஊர் பக்கத்துல, और कन्याकुमारी हमारे जो गांव है उसके बगल में ही है। டெல்லி சைடுல இருந்து ஒரு பெரியவரை தூக்கிட்டு வந்தாங்க। और दिल्ली से एक वरिष्ठ व्यक्ति को लेके आए हुए थे। எதுக்கு தூக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா, वो क्यों उन्हें लेके आए थे। அந்த கடல்ல ஒரு முக்குனா பரலோகம் போயிடுவான்னு நினைச்சு வந்தாங்க। और वो ऐसा कह रहे थे यदि उस समुद्र में उन्हें एक डुबकी मारे तो वो सीधा स्वर्ग पहुंच जाएंगे அவர் करके। பரலோகத்துக்கு போக முடியாது, और वो स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। ஆண்டவர் ரத்தத்தால கழுவப்பட்டால் ஒளியே தான் நீ பரலோகம் போக முடியும்। और जब तक वो परमेश्वर के लहू से धोए नहीं जाएंगे तब तक वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। என்ன பாவம் பண்ணியோ और आपने क्या पाप किया। இந்த பாவத்தை நீ அறிக்கையிடணும், और इस पाप को तो आपको अंगीकार करना தேவ சமூகத்தை கண்ணீர் விட்டு அழணும், और परमेश्वर के समूह में आपको அப்புறம் आंसू பாவம் बहाना உனக்கு है। மன்னிக்கப்படும், तब जाके आपके पाप की क्षमा அப்புறம் உனக்கு मिलेगा। பரலோகமான வாழ்க்கை கிடைக்கும்। तब जाके आपके स्वर्ग का जीवन அது मिलेगा। அறியாம டெல்லி சைடுல இருந்து கன்னியாகுமரிக்கு வந்திருந்தாங்க 3000 கிலோமீட்டருக்கு மேல। और इस बात को बिना जाने वो क्या है दिल्ली शहर से कन्याकुमारी तक आए लगभग 3,000 किलोमीटर पार करके। 3-4,000 கிலோமீட்டர் இருக்கும்। और लगभग 3,000 किलोमीटर के என் आसपास होगा। கண்களுக்கு முன்னால காட்சியை பார்த்தேன், और इस बात को मैंने अपनी नजरों से देखा வேதனையாவே இருந்தது। और मैं बहुत ही दुखित ஐயோ हो இந்த गया। ஜனங்களை அறியாம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்களே, और ये जन जो है ये இந்த लोग जो ஜனங்கள் है தெரியாம வாழ்ந்துகிட்டு बिना இருக்காங்களே, जाने जी रहे हैं। ஜனங்கள் அறியாம தெரியாம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்களே, और इस बात को परमेश्वर को बिना जाने वो क्या है अपने जीवन को बिता रहे हैं। வேதனையா இருந்தது। और बहुत ही दुख இன்னைக்கு रहा। அநேக மக்கள் நினைக்காங்க ऐसे कई सारे जन सोचते हैं கங்கையில போய் முழுகினா ஆயிடுன்றாங்க, यदि गंगा नदी में डूब जाए तो हो जाएगा करके। சிந்தி நதியில போய் முங்கினா ஆயிடுன்றாங்க। और दूसरा नदी में यदि डुबकी मारे तो हो जाएगा அங்க करके। பெண்ணங்கள் தான் போகுது நதியில, பெண்ணங்கள் தான்। और वहाँ पे यदि जाएंगे कई सारे वो मृत शरीरी वहाँ पे हैं। விடுதலை யாரும் தர முடியாது, और वहाँ पे कोई भी आपको छुटकारा ஆண்டவர் नहीं दे மாத்திரம் தான் सकता है। மனுஷன் வாழ்க்கையில விடுதலை தர முடியும்। केवल परमेश्वर ही है जो एक मनुष्य के जीवन में அவர் தான் छुटकारा को வாழ்க்கையில दे விடுதலை सकता है। தர முடியும்। और वही है जो आपको छुटकारा दे सकते हैं। யோவான் 5 அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में जब हम देखते हैं எருசலேமில் और यरूशलेम में ஆட்டு வாசல் அருகே ஆட்டு 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 வாசல் அருகில் और भेड़ों की जो चराई है वो उसके सामने जो है ஒரு குளம் இருக்குது। और वहाँ पे एक कुआं है। பெதஸ்தா குளம்னு குளம் இருக்குது। और बेतस्ता करके वहाँ पे एक कुआं है। யோவான் 5 அதிகாரம், யோவான் 5 और அதிகாரத்தில் यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में 5 மண்டபங்கள் அங்கே இருக்கும்। और वहाँ पे 5 दरबारे हैं। இந்த 5 மண்டபங்கள்ல இந்த குளம் இருக்கும்। और वहाँ पे जो है 5 दरवाजे हैं उसके बीच में वो அந்த मौजूद है। குளத்தை சுற்றி சப்பாண்டிகள் எல்லாம் படுத்திருப்பாங்க। और उस 5 दरवाजे के और कई सारे लोग बीमार जो है, कई सारे कोढ़ी लोग जो है, कई सारे लोग बैठे रहते हैं। நெடுங்காலம் வியாசர் படுத்திருப்பாங்க।
और कई सारे जो बीमार लोग हैं वो वहाँ पे लेटे होते ஏன்னா அந்த குளத்தை யாராவது தேவதூதன் எப்பமாவது கலக்குவான். हैं और कभी कभी क्या है स्वर्गदूत जो है उस कुएं में आके उस पानी को हिलाता அந்த है குளத்தை கலக்கும் போது और जब उस कुआं को पानी को हिलाता है யார் முதலாவது இறங்குகிறானோ जो पहले उस पानी में उतरता அவன் है எப்படிப்பட்ட வியாதி உள்ளவனாலும் சுகமாகுவான். और चाहे वो कैसे भी बीमारी उसका क्यों ना हो जाए वो चंगा हो அது जाता போல है நிறைய பேர் படுத்திருக்காங்க. और इसीलिए कई सारे लोग उसके पास में बैठे हुए हैं அந்த குளத்துல ஒரு மனுஷன் 38 வருஷமா உடல்நல சரியில்லாம மனுஷன் படுத்திருக்கான். और वहाँ पे उस कुएं के बगल में 38 साल से एक व्यक्ति जो बीमार है वो वहाँ पे बैठा हुआ था ஆண்டவர் ஊழியத்துக்கு வந்து 33 வருஷம் और जब 33 வயசுல परमेश्वर सेवकाई में आए वो लगभग 33 साल के उम्र पे वो जो है सेवकाई में आए அந்த வழியை பார்க்காரு. और उस मार्ग की ओर वो देखते அவன் हैं நெடுங்காலம் வியாதிசன் ஆண்டவர் பார்க்காரு. और इस बात को देखते हैं कि वो कई सालों से वो बीमार है குணமாக விரும்புறியான்னு கேட்காரு. और वो उससे पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है அவன் करके। சொல்றான் ஆண்டவர் நான் இதுக்கு தான் இங்க படுத்திருக்கேன். और वो कहता है हाँ परमेश्वर मैं इसीलिए यहाँ पे बैठा இந்த हुआ குளம் கலக்கப்படும் போது யாராவது இறங்கிறாங்க முந்தி. और जब भी इस कुएं का पानी को स्वर्गदूत दिलाता है कोई ना कोई मुझसे पहले वो என்னால இறங்க முடியல என்னால இறங்க முடியல வேதனைப்படுறான். और वो ऐसा दुखित होता है कि मैं पहले पहुंच नहीं पा रहा हूँ அந்த குளம் எத்தனையோ நாட்கள் கலக்கப்பட்டிருக்கும். और वो कुआं जो है कई बार वो जो है उसका पानी हिलाया गया எத்தனை பேர் உள்ள குளத்துல விழுந்து சோம்பிட்டு பார்த்திருப்பாங்க. और कई सारे लोग क्या है उस पानी में उतर के चंगाई को இந்த प्राप्त காட்சி எல்லாம் பார்த்திருப்பான். और इन सारे बातों को उसने देखा ஐயோ होगा। இவங்க சுகம் பெற்று போறாங்களே और वो ऐसे कह रहा होगा ओ ये जो है चंगे होके जा रहे என்னை हैं இறக்கி விட ஆள் இல்லையே. और कोई ऐसा नहीं है कि वो मुझे क्या है कोई उस पानी में उतार दे। அழுதுருப்பான். उसने रोया வேதனையோடு வாழ்ந்திருப்பான். वो कई सारे दुख के साथ ஆனா जिया ஆண்டவர் होगा। கேட்ட உடனே சொல்றான் ஆண்டவரே நான் அதுக்கு தான் ஐயா படுத்திருக்கேன். परंतु जब भी परमेश्वर यीशु मसीह उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि हाँ मैं इसीलिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ ஆண்டவர் சொன்னார் ஒரே வார்த்தை और परमेश्वर ने एक ही शब्द उससे உன் कहा படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நடன்னு சொன்னாரு. वो कहते हैं तू अपनी बिस्तर को उठा உன் और படுக்கை चल जा எடுத்துக்கொண்டு करके। நடன்னு சொன்னாரு. अपनी बिस्तर को उठा के तू चल करके அந்த நிமிஷமே விடுதலை பெற்றார். और उसी क्षण वो क्या है चंगाई को प्राप्त அந்த करता है நிமிஷமே விடுதலை பெற்றார். और उसी क्षण वो चंगाई को प्राप्त करता है இன்றைக்கு உன் வாழ்க்கையில் நீ பல விதமான வேதனையாக வந்திருக்கலாம். और हो सकता है आज भी जीवन में कई सारे संघर्ष या कष्टों के साथ आए होंगे பல கஷ்டத்தோடு வந்திருக்கலாம். और दुखों के साथ आए होंगे எத்தனையோ குடும்பங்களில் செய்வன கோளாறு. और कई सारे परिवारों में जादू टोना हुआ होगा ஒருத்தர் வாழ்வு ஒருத்தருக்கு பிடிக்காது. और एक जी रहे हैं एक दूसरा जी रहा है इसे पसंद नहीं करते அவங்களை होंगे எப்படி கெடுக்கலாம்னு செய்வன மக்கள் செய்யக்கூடிய மக்கள் உண்டு. और एक परिवार के ऊपर दूसरा परिवार जो है वो अच्छा उन्हें अच्छा नहीं जीना करके वो काला जादू किए होंगे எத்தனையோ மக்கள் தீராத வியாதியில் படுத்திருப்பாங்க. और कई सारे जन जो है जो बीमार ठीक ही नहीं हो सकता इस बीमारी के साथ होंगे எழும்ப முடியாம படுத்து பெட் சோல் வந்திருக்கும். कई सारे लोग ऐसे होंगे कि जो है बिस्तर से उठ नहीं पा रहे होंगे और उनके எத்தனையோ पास குடும்பம் வாழ்ந்துக்கலாம். எத்தனையோ குடும்பம் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கலாம். और ऐसे कई सारे लोग जी रहे होंगे இன்னைக்கு ஆண்டு உன்னை பார்க்காரு. और आज परमेश्वर आपको நீ देख எப்படிப்பட்ட வியாதியா வந்திருந்தால் இன்னைக்கு வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் விடுதலை தர போகிறாரு. आप किसी भी बीमारी के साथ आ जाए परंतु परमेश्वर आज जो है आपको चंगाई दे सकते हैं மற்ற ஆட்கள் கேட்காம எனக்கு அது பணத்தை கொண்டு வா, எலுமிச்சம்பழம் கொண்டு வா, கோழி கொண்டு வா, முட்டை கொண்டு ஆண்டு கேட்கல. और दूसरे परमेश्वर क्या है ऐसा नहीं पूछ रहे हैं कि तुम मुर्गी को लेके या अंडे को लेके या नींबू को लेके ऐसा नहीं है நீ உன் இருதயத்தை மாத்திரம் தான். परंतु केवल तू अपने हृदय को मेरे पास நீ दे। வருத்தப்பட்டு எத்தனையோ மக்கள் வாழ்றாங்க. और आज कई सारे जन जो है दुख के साथ जी रहे हैं மத்தேயு 11:28 வேதத்துல வாசிங்கன்னா और मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 11वें अध्याय 28 वचन को जब आप पढ़ते हैं வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவனே हे बोझ से दबे हुए நீ लोगों யாரால் இடத்தில் வா, आप तुम मेरे पास आ जाओ நான் உனக்கு இளைப்பால் தருவேன். मैं तुम्हें विश्राम दूंगा ஒரு கண்ணீரை துடைப்பேன். और मैं तुम्हारे आंसुओं को ஒரு पोंछूंगा கண்ணீரை காண்கிற தெய்வம் ஒருத்தர் உண்டான இயேசு மாத்திரம் தான். और तेरे आंसुओं को देखने वाला एक परमेश्वर है वो यीशु मसीह है உனக்கு விடுதலை தரக்கூடிய ரட்சகர் ஒருத்தர் உண்டான இயேசு மாத்திரம் தான். और आपको उद्धार देने वाला एक उद्धार உலகத்தில் இல்ல. और कोई ऐसा அவர் संसार में மாத்திரம் உலகத்தில் விடுதலை தர केवल முடியும். वही है जो आपको इस संसार में छुटकारा दे सकते हैं அதை சொல்லி நான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன், ஆண்டவரே और इस बात को இந்த மனுஷன் இந்து மனுஷனா இருக்கிறாரு. और इस बात को मैंने कह के मैंने परमेश्वर से मांगा हे परमेश्वर ये व्यक्ति जो है हिंदू हैं பிரசிடெண்டா இருக்காரு. और ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं ஒருவேளை சுகம் பெற்றுனா और यदि उन्होंने चंगाई पा लिया तो உண்மையாவே துதிப்பாங்கப்பா, உண்மையாக துதிப்பாங்க, சாட்சியா இருப்பாங்க. और यदि उन्होंने वो चंगाई को पा लिया आपकी ओर से तो वो आपकी आराधना करेंगे आपके लिए गवाही ठहरेंगे கடைசி மகிமையை வாழ்வாங்க. और अंत तक वो आपकी महिमा में जीते रहेंगे சொல்லி அவங்க தண்ணீர் கொடுத்து வந்துட்டோம். और इस बात को कह के उन्हें वो पानी दे के मैं आ गया இப்போ போயிருக்கும்போது வந்தாங்க, சுகத்தோடு வந்தாங்க. और जब मैं हाल ही में पहुंचा उनके ரெண்டு पास वहाँ पे காரங்களையும் गया हुआ था, தூக்குனாங்க. तो
तो वो जो है अपने दोनों हाथ को उठा ரெண்டு रहे थे, கரங்களையும் தூக்குனது மாத்திரமல்ல, अपने दोनों हाथों को उठा के மெய்யான ரட்சகர் இயேசப்பான்னு சொல்லி சாட்சி வாயில சொன்னாங்க. और सच्चा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है करके इस बात இவர்தான் को என்ன गवाही ரட்சகர், कह रहे थे। இவர்தான் என்ன ரட்சகர் தெய்வம்னு சொன்னாங்க. और इन्होंने ही मुझे उद्धार दिया करके प्रभु यीशु मसीह का नाम को वो कह रहे இன்றைக்கு थे। உன் வாழ்க்கையில விடுதலை தரக்கூடிய ஒரு ரட்சகர் ஒருத்தர் உண்டானவர் இயேசு. और यदि आज आपके जीवन में कोई है जो उद्धार दे सकता है या छुटकारा दे सकता है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। ஆண்டவர் மனுஷன் மதம் மாத்த வரல, और परमेश्वर ने यहाँ पे किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आए हैं। மதம் யானைக்கு தான் உண்டு, மனுஷனுக்கு இல்ல. और जो धर्म है वो मनुष्य के लिए है, परंतु परमेश्वर के लिए உன் नहीं है। அன்பான வாழ்க்கையை இனிதாய் மாற்றுவதற்கு இந்த உலகத்துல வந்தார். परंतु परमेश्वर क्या है, आपके जीवन को सुंदर बना दे और आपके जीवन को आप सुंदरता के साथ जिए, उसके लिए परमेश्वर आए हैं। எந்த தெய்வம் உன்னை காப்பாத்தாது, और कोई भी भगवान क्या है आपको बचा नहीं सकते எந்த हैं, யாரும் விடுதலை தர முடியாது. कोई भी आपको छुटकारा नहीं दे सकते हैं, ஏனென்றால் क्योंकि உனக்காக आपके लिए, எனக்காக मेरे लिए சிலுவையில ஒப்பு கொடுத்த தெய்வம் ஒருத்தர் அவர்தான். और क्रूस पे मारा गया एक ही परमेश्वर वही है। அது மாத்திரமல்ல, केवल वही नहीं है, சிலுவைக்கு ஒப்பு கொடுத்தது மாத்திரமல்ல, और क्रूस पे उसने अपने आप को अर्पण कर दिया। அவர் சுற்றி திரிந்த நாட்களெல்லாம் நன்மை செய்யறவே சுற்றி திரிந்தார். और जब तक वो इस संसार में जी रहे थे, वो उस समय भर वो क्या है, हर एक जन के लिए भलाई करने के लिए जी रहे थे। திரளான ஜனங்களை கண்டது மனது உருகினார். और बड़ी सी भीड़ को देख के वो क्या है, उनके दिल में तरस आया हो। ஜனங்களுக்காக பரிதபிக்கிறேன்னு சொன்னார். और वो इस बात को कह रहे थे, वहां पे लोग क्या है संघर्ष को उठा रहे हैं। இன்னைக்கு உனக்கு மனம் பதறக்கூடிய, மனம் பதைக்கக்கூடிய, மன உருகக்கூடிய தெய்வம் ஒருத்தர் இயேசு மாத்திரம். और आज आपके लिए जो अपने हृदय को पिघलता है, या आपके लिए अपने हृदय में दुख को रखता है, या आपके लिए कोई है जो चिंता करता है, वो केवल प्रभु यीशु நீ मसीह है। அவரை நம்பினால் यदि आप उसके ऊपर अपने विश्वास को உன் வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்படும். आपकी जीवन आशीषित रहेगा। வாழ்க்கை ஆசீர்வதிப்பது மாத்திரமல்ல, केवल आपके जीवन आशीषित ही नहीं உன் रहेगा, குடும்பத்தில் உள்ள எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆயிடும். और आपके परिवार में जितना भी संघर्ष है या परेशानी है, वो सारा क्या है ठीक हो அவர் जाएगा। நம்பின பிள்ளைகள் ஒரு நாள் வெட்கப்பட்டு போனதில்லை. और उसके ऊपर जो भी विश्वास रखते हैं, वो कभी भी क्या है निंदा ना देखते அவர் हैं। வெட்கப்படுறது தெய்வம் அல்ல, और परमेश्वर क्या है कभी आपको निंदा नहीं करते हैं, நம்மை ஆதரிக்கிற தெய்வம், परंतु परमेश्वर क्या है हमें गले लगाने वाले வழிநடத்துகிற परमेश्वर है। தெய்வம். वो हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर அந்த हैं। கணவன் மனைவி பத்த சந்தோஷத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு சந்தோஷம். और यदि आप उस पति पत्नी के बीच में जो आनंद उन्होंने अवलो पाया, यदि आप संतोष। देखेंगे तो वो बहुत बड़ा आनंद था उनके लिए। ஆண்டவர் எங்களுக்கு எவ்வளவு ஆண்டவர் விடுதலை கொடுத்தார் சொன்னாங்க. और उन्होंने ऐसा कहा, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है விடவே முடியாது. और कोई भी उसे दबा नहीं सकता है, அவ்வளவு சந்தோஷம். और इतना आनंद होता है। அதான் ஆண்டவருடைய அன்பு. और यही परमेश्वर का ஒரு प्रेम है। பணம் மனுஷ சந்தோஷம் தர முடியாது. एक पैसा धन दौलत जो है எத்தனை मनुष्य को आनंद नहीं दे सकता है, எத்தனை எஸ்டேட் சந்தோஷம் தர முடியாது. और कितना भी एस्टेट हो जाएगा वो भी क्या है आनंद नहीं दे सकता எத்தனை है, பிளாட் இருந்தாலும் விடுதலை தர और முடியாது. कितना भी मकान खरीद ले वो क्या है उसे आनंद ஆண்டவருடைய नहीं दे அன்பு सकता மாத்திரம் है। தான் சந்தோஷம் தர முடியும். परंतु एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का प्रेमी है जो उसे आनंद दे सकता है। தமிழ்நாட்டுல और तमिलनाडु पे தருமபுரி மாவட்டம்னு ஒரு மாவட்டம் இருக்கு. और धर्मपुरी करके एक जिला है, அங்க ஆனந்தூர்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு. और वहाँ पे आनंदपुर करके एक गांव है, ஒரு தெரிஞ்ச தம்பி, और एक जान पहचान के एक भाई हैं, ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்ட தம்பி, और उन्होंने परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त किया है, அவனுக்கு ஒரு தாகம், और उनके पास एक प्यास है, அவனுக்கு ஒரு பாரம், और उनके पास एक बोझ है, அவருக்கு எப்படியாவது அழிஞ்சுக்கிட்ட ஆத்மாக்களை தேவன் மந்தையில் சேர்க்கணும் ஒரு ஆசை. और उनके पास ऐसा एक बोझ है कि किसी ना किसी रूप से जो भी आत्माएं नाश हो रहे हैं, उन्हें किसी ना किसी रूप में परमेश्वर के पास पहुंचाना है அந்த करके। தம்பி ஈசியில் தான் படித்தான். और उन्होंने ECA पढ़ा है, ஈசியில் தான் வேதாம கல்லூரியில் படித்தான். और यहीं पे ECA में उन्होंने परमेश्वर के वचन के बारे में पढ़ा है। படித்து முடித்த உடனே और जब उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया, பிரதர் மோகன்சியோட ஊழியஜியோட தம்பி ஒரு அண்ணன் இருக்கார், பேர் கவனம் வரல. और भाई मोहन जी के साथ एक जन जो है काम करते हैं, सेवकाई करते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்தவர், और वो जो है रामनाथपुर के हैं, பெரிய ஊழிய கருதிக்கதரிசி. और बहुत बड़ा वो परमेश्वर के दास है, भविष्यद्वक्ता हैं। அவர்கிட்ட போய் ஜெபம் பண்ணான். और उनके पास जाके उन्होंने प्रार्थना அவர் की, சொன்னார் தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆனந்தூர் கிராமத்துக்கு நீ போனான். और उन्होंने उनसे ऐसा कहा, धर्मपुरी के जो जिला है वहाँ पे आनंदपुर के गांव में आप जाके सेवकाई करो करके, மனைவி அழைச்சு கொண்டு போவாங்க. और अपनी पत्नी को लेके आप वहाँ पे जाएं। அங்கு ஒரு கிறிஸ்தவங்க கிடையாது, और वहाँ पे कोई एक भी मसीह नहीं 5 है, பைசா கையில் கிடையாது. और उनके पास 5 रुपया भी हाथ में नहीं இப்போ நம்ம है। கதீட்ரல் சர்ச் கட்டுறோம்ல, அந்த
ஃபெய்த் சர்ச் और जैसे कि अब जो है फेथ जो कैथेड्रल जो है இது जैसे ஒரு कलीसिया बना रहे விசுவாசமான हैं வாழ்க்கையில் தன் மனைவி கரத்தை பிடிச்சான் और इससे भी बढ़कर वो जो है विश्वास के साथ अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के वो जाते हैं ஆண்டவர் காற்று பாதைக்கு போவோம் और वो जिस मार्ग में परमेश्वर मुझे ஆண்டவர் चला रहे हैं ஒரு उस நாள் मार्ग में கைவிட जाएंगे। மாட்டாரு परमेश्वर कभी हाथ नहीं நான் छोड़ेंगे செய்த அவர் வேலையை செய்ய போறேன் और मैं उनके काम को करने के அவர் लिए जा வேலையை रहा செய்ய हूं। போறேன் मैं उनके काम को அவர் करने के என்ன लिए जा ஒரு रहा நாள் हूं। கைவிட மாட்டார் वो कभी भी मेरे हाथ को नहीं छोड़ेंगे சொல்லி இந்த கிராமத்துல போனா और इस प्रकार कह के वो उस गांव में जाते हैं யாரும் உனக்கு வீடு கொடுக்கல உட்கார்றது और कोई भी उन्हें रहने के लिए घर नहीं दिए ஒரு பாட்டியமா இருந்த இடத்துல और एक दादी थे वहाँ पे அந்த उस பாட்டியமட்ட ஆண்டவர் அன்பை சொன்னாங்க और वहाँ पे वो उनके पास उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को बांटा இயேசுனா என்ன தெரியாது और यीशु करके वो नहीं जानते थे वो कौन है इस बात को नहीं அந்த जानते ஆண்டவர் थे அன்பை சொன்னாங்க और वहाँ पे परमेश्वर के बारे में அந்த उन्होंने அம்மா बताया அந்த அம்மா ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு தம்பி நீ இந்த இதில் உட்காரு திருநெல்வேலி சொன்னாங்க और वो क्या है परमेश्वर को वचन को सुन के वो उन्हें क्या है उसमें एक चाहत आया उसके साथ वो ऐसे कह रहे थे आप यहाँ पे बैठ जाओ அப்போ करके அவன் சொன்னான் பாட்டியம்மா நாங்கள் நைட்டு தங்கிட்டுமான்னு கேட்டான் और तब उन्होंने पूछा कि दादी माँ हम रात को यहाँ पे ठहर सकते हैं அவ சொல்லாங்களே நாய் தொந்தரவுக்கு தம்பி நிறைய கஷ்டம் இருக்குன்னாங்க ஒன்றும் பரவாயில்லம்மா என்ன ஏசப்பா என்னை பாதுகாத்துக்குவாருன்னா और वो उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ पे कुत्ते ज़्यादा रहेंगे परेशानी होगा आपके लिए तो उन्होंने ऐसा कहा कोई बात नहीं दादी माँ हम रात को ठहर लेंगे मेरा परमेश्वर यीशु मसीह जो मुझे सुरक्षा देंगे करके திருமணமான புதுசு और नए नई शादी हुआ है उन्हें மனைவி ஆசைப்பட்டிருப்பாள்ல और उनकी पत्नी का एक चाहत तो होगा தன் கணவன் திருமணமாகி எங்கேயாவது நல்ல இடத்து போய் நம்ம விஜய வாழ நினைச்சிருப்பாள்ல और उन्होंने उनकी पत्नी ने ऐसा सोचा होगा क्योंकि नई नई उनकी शादी हुई है कोई अच्छी जगह पे जाके एक अच्छा घर पे रह सकते हैं करके எத்தனையோ கனவோடு வந்திருப்பாள்ல और कितना सपने के साथ वो आए होंगे அவன் திருநெல்வேலி பட போன்றான் और वहाँ पे वो क्या है बाहर क्या है वो रात को बिताएंगे करके वो ऐसे कहते हैं திருமணம் பண்ணும்போது और जब शादी हो रहा था என்ன ஒப்பந்தம் பண்றாங்கன்னா और वहाँ पे क्या वहाँ पे निर्णय को करते हैं வாழ்விலும் தாழ்விலும் और जीवन के ऊंच और नीचाओं पे சுகத்திலும் துக்கத்திலும் और अच्छाई में या बीमारी में भी மரணம் நம்மை பிரிக்கும் வரைக்கும் और जब तक मृत्यु हमें अलग நான் करेगा तब உண்மையான புருஷனா இருப்பேன் मैं तेरे लिए एक विश्वास योग्य पत्नी உண்மையான रहूंगा, மனைவியா இருப்பேன் एक विश्वास योग्य पत्नी रहूंगी அப்படி करके। கணக்கு வாக்கு கொடுக்காங்கல்ல इस प्रकार को निर्णय को हम शादी में அந்த करते हैं வார்த்தையை நம்ம சரின்னு சொல்லிட்டாங்க और उस निर्णय को वो विश्वास करते हुए वो हाँ कह देते हैं அடுத்த நாள் और अगले ही दिन அந்த ஊர்ல தீராத வியாதியில கஷ்டப்பட குடும்பத்தார் और उस गांव में एक परिवार था जिनका बीमारी कहीं ठीक नहीं हो रहा था वो जो है பிசாசு பிடித்து வேதனையோடு வாழ குடும்பத்தார் और शैतान जो है उनके परिवार को ग्रसित पे रखा हुआ है उस परेशानी के साथ वो जी रहे அந்த हैं பாட்டி அடையாளம் காட்டினாங்க और वो दादी माँ ने उस परिवार के और अपने அந்த हाथों को வீட்டுக்கு बताया ரெண்டு போய் ஜெபம் பண்ணாங்க और ये दोनों जाके उनके घर पे जाके அந்த प्रार्थना करते நிமிஷத்துல பிசாசு உருண்டு ஓடிச்சு हैं। और उसी क्षण क्या है उनके परिवार से शैतान क्या है धूम धड़ाक के भाग கதறி जाता है ஓடிச்சு और चिल्लाकर भाग जाता இந்த है காட்சி அநேக மக்கள் பார்க்காங்க और इस घटना को कई सारे जन जो है देखते இவனு हैं தேவர்கள் வந்திருக்கான்னு சொல்லி எல்லாம் சாட்சி சொன்னாங்க और यहाँ पे क्या है दूत आए करके सारे लोग क्या है इस बात को कह रहे थे அப்படி நாளெல்லாம் ஊழியம் அப்படியே பெரிய லெவல் ஆயிடுச்சு ऐसे थोड़ा करके उनकी सेवकाई क्या है நிறைய बढ़ना மக்கள் शुरू வந்து होता ஆண்டவர் है அன்பு பெற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க और कई सारे जन आके परमेश्वर की चमत्कार को पाके के जाते இந்த हैं கணவன் மனைவிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் और ये पति पत्नी जो है बहुत ही आनंदित हैं। ஆண்டவர் கொடுத்த ஊழியம் எப்படிப்பட்ட ஊழியம் और परमेश्वर ने इस प्रकार का सेवकाई दिया है பேய்கள் ஓடுது और यहाँ पे शैतान जो है भाग रहे हैं வேதனையோடு வாழக்கூடிய குடும்பம் விடுதலையோடு வாழ்றாங்க और दुख के साथ जो परिवार जी रहे हैं वो आनंद के साथ आजादी के साथ जी रहे हैं சந்தோஷம் இல்லாத குடும்பங்கள் சந்தோஷப்படுது और जो परिवार में आनंद नहीं था खुशी नहीं था वो आनंद के साथ खुशी के साथ जी रहे हैं நிறைய சந்தோஷம் और कई सारा आनंद था அந்த ஊர்ல ஒரு பெரிய மனுஷன் இருந்தா ஊர் பிரசிடென்ட் और वहाँ पे उस गांव की जो मुखिया थे वो रह रहे थे ரொம்ப அழகா இருப்பாரு और वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं ஒரு வாழ்க்கை தவறான வாழ்க்கை परंतु उनका जीवन जो है एक गलत जीवन था தவறான வாழ்க்கை வாழ்ந்தவங்களுக்கு ஒரு நோய் அவர் பின்பற்றுது और गलत जीवन जीने के वजह से उनके पास एक गलत बीमारी आ जाता है எய்ட்ஸ் நோய் வருது और उनके पास एड्स की बीमारी आ जाती है அவருக்கு என்ன செய்யணும் தெரியல वो क्या करे वो इस बात को नहीं पहचान पा रहे थे ரகசியமா இப்படி போய் எவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கறாரு और गुप्त चुप में वो क्या है कई सारे इलाजों को करने के लिए जा रहे थे விடுதலை கிடைக்கல और उन्हें छुटकारा नहीं मिल விடுதலை रहा था கிடைக்கல छुटकारा नहीं मिल रहा था மனைவிக்கு சொல்லல और पत्नी से नहीं बताया மனைவி சொன்னா வேதனைப்படுவா और यदि पत्नी से बताए तो पत्नी क्या है दुखित हो जाएगी புருஷன் நமக்கு தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி வேதனைப்படுவா और यहाँ पे पत्नी क्या है पति जो है बिना बताए गुप्त चुप ने उन्होंने गलतियां कर दिया करके पत्नी जो है दुखित हो जाएगी करके மனதிலே வேதனைப்படுறாரு
और ये क्या है, अपने मनी मन में खोस रहे மனதிலே हैं, दुखी हो மனதிலே रहे हैं, கஷ்டப்படுறாரு. अपने मनी मन में बहुत ही कष्ट कोटा रहे அப்ப हैं। அவர் அந்த தம்பி ஊழியத்தை பார்க்கிறாரு. और उसी समय में ये क्या है, इस भाई की सेवकाई को देखते हैं நிறைய பேர் அவர்கிட்ட சுகமடைஞ்சு போற பார்க்காரு. और कई सारे जन जो है उनके पास आ रहे हैं, छुटकारे को पा रहे हैं, चंगाई को पा रहे हैं। इस बात को देख के वो आते हैं இவருக்கு நம்பிக்கை और इनकी विश्वास, அங்க போனா நமக்கு விடுதலை ஆகும். और ये इनका विश्वास ये था कि यदि मैं वहां पे चले जाऊं तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा அது எப்படி करके। போகுது? और वहां पे मैं कैसे जाऊं? என்ன நினைப்பாங்க யாரும் சொல்லிச்சா? और यदि कोई मुझसे बात करे तो मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे? ரகசியமா बहुत ही गुप्त छुप में। இரவு 12 மணிக்கு மேலே और रात को 12 बजे के ऊपर जो है போனாரு. वो जाते हैं उनके पास போன அவருடைய ஆலயத்து முன்னால அப்படியே தூரமா நின்னதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார். और वहाँ पे क्या है, कलीसिया के सामने खड़े होके वो क्या है, वहाँ पे उनकी और अपनी नज़र को लगाए देखते हैं டெய்லி போறாரு. और हर दिन जाते हैं। ஒரு நாள் தம்பி இரவுல பார்த்துட்டாரு. एक दिन क्या है, रात के समय में भाई जो है, परमेश्वर के दास जो है, उन्हें देख लेते हैं। யாருன்னு கேட்கிறாரு. वो पूछते हैं आप कौन है जी करके। இவர் பயந்து ஒதுங்குறாரு. ये बहुत ही डर डर के ये क्या है, अलग हो रहे थे, दूर आ रहे थे। இவர் உடனே கூப்பிடுறாரு. तुरंत क्या है, परमेश्वर के दास उन्हें बुलाते हैं, ஐயா வாங்க. भाई साहब आप आ जाइए। கதவை திறந்து விடுறாரு. और वो क्या है, दरवाजा खोलते हैं और अंदर लेके आते हैं உள்ள உட்கார விடுறாரு. और अंदर बिठाते हैं அவர் उन्हें। மனைவி எழுப்புறாரு. और उनकी पत्नी को वो जगाते हैं நல்ல டீ ஒன்று போட்டு கொடுக்க சொல்றாரு. और कहते हैं कि एक कच्चा सा चाय बना दो ஒரு करके। காரியத்தை கேட்கிறாரு. और ये क्या है, इनके विषय को காரியத்தை सुनते हैं। கேட்கும்போது கண்ணீர் விட்டு அழுறாரு. तो जैसे इनके विषय को सुनते हैं, बड़े आंसू के साथ वो रोते हैं। அப்ப சொல்றாரு, तो वहां पे वो कहते हैं என் தெய்வம் எல்லாத்துக்கும் விடுதலை தருவார். मेरा परमेश्वर हर एक बातों के लिए छुटकारा देते हैं என்ன करके। வேதத்துல வாசிக்கமில்ல? क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं, யோவான் 8ஆம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में जब हम देखते ஒரு हैं, விபச்சார ஸ்திரியை கூட்டிட்டு வராங்க நிறைய பேர். और वहाँ पे कई सारे लोग जो है एक विवेचारी स्त्री को क्या है वहाँ पे लेके आते ஆண்டவர் हैं, கொண்டு வந்து விடுறாங்க. और वो क्या है, परमेश्वर के पास लेके आके उसे छोड़ देते हैं। விபச்சாரத்துல கைமீமா பிடிக்கப்பட்டா, और वो इस बात को कहते हैं, इसे व्यभिचार करते हुए हमने इसे रंगे हाथ வேசித்தனம் பண்ண पकड़ा है கைமீமா பிடிக்கப்பட்டா, और रंगे हाथ हमने इसे पकड़ा है करके। இவளை கல்லெறிந்து கொல்லன்னு சொல்லி மோசே சொன்னாரே. और जैसे मूसा की आज्ञा है, इसे पत्थरवा करके मार डालना है நீங்க என்ன करके। சொல்றீங்க? और यीशु मसीह से ஏன்னா पूछते ஆண்டவர் हैं, மேல आप क्या कहते हैं? ஆண்டவர் மேல குற்றம் சாட்டுறதுக்காக காரியம் செய்தாங்க. और यहाँ पे कि वो क्या है, परमेश्वर के ऊपर दोषी ठहराए या परमेश्वर को दोष डाले, उसके लिए इस सवाल को वो क्या है वहाँ पे पूछते हैं। ஆண்டவர் ஒண்ணுமே சொல்லல. और परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। இவங்க கேட்டுட்டே இருக்காங்க. और जैसे कि ये सवाल को कर ही रहे थे, ஆண்டவர் தரையில எழுதுறாரு. परमेश्वर जमीन में लिखना शुरू करते हैं। அவங்க கேக்குறாங்க, ஐயா நாங்க கேட்டுட்டே இருக்கமே, और वो कहते हैं, गुरुजी हम आपसे पूछ ही रहे हैं, நீ தரையில எழுதுறீங்களேன்னு கேட்டாங்க. आप भूमि में लिख रहे हैं। அப்ப ஆண்டவர் கேட்டாரு, तब परमेश्वर ने उनसे पूछा, உங்ககிட்ட பாவம் இல்லாதவன் यदि आप में से जो इसके पास भी पाप नहीं है, முதலாவது கல்லெறியினாரு. और जो भी पाप रही तो वो पहले क्या है, पत्थरवा करे। கல் எழுதி கீழே மறுபடியும் எழுதுறாரு. और वो इस बात को कह के दोबारा भूमि में लिखना शुरू அப்ப करते நான் हैं। கீழே பாக்குறான். और तब जब वो नीचे देखते हैं, அவன் செஞ்ச பாவத்தை ஆண்டவர் எழுதுறாரு கீழே. और அவன் जो என்ன பாவம் பண்ணானோ, தண்ணி அடிச்சானா, விபச்சாரம் பண்ணானா, வேசித்தனம் பண்ணானா, அடுத்த வீட்டை தாண்டினானா, என்னென்ன பண்ணா அத்தனை ஆண்டவர் எழுதுறாரு. और जो भी सवाल को कर रहे थे और उनके सारे पापों को परमेश्वर क्या है वहाँ पे ज़मीन में लिख रहे थे। उन्होंने क्या किया, चोरी किया, व्यभिचार किया या किसी के घर पे कूद के कुछ काम को किया, जो भी बातें, वो सारे बातों को वो नीचे लिखते हैं। உடனே அவங்க கல்லை எரியல. और वहाँ पे लोग क्या है, पत्थरवा नहीं करते அந்த हैं கல்லை போட்டு போயிட்டாங்க. और उस पत्थर को नीचे फेंक के वो चले जाते ஏன்னா हैं, ஆண்டவரை தவிர யாரும் உண்மை கிடையாது. क्योंकि परमेश्वर के अलावा कोई भी सच्चा नहीं நீ है। வேதத்தில் வாசிக்கும் போது யோவான் 8:46 வாசிக்கும் போது என்கிட்ட பாவம் யார் என்ன கொடுத்தப்பட்டு முடியும் கேட்ட ஒரே தெய்வம் அவர்தான். और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वीं अध्याय 46 वचन में जब आप पढ़ते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर क्या है, निर्दोष है, उनके पास कोई भी पाप नहीं है करके। அது அறிந்தான்னு சொன்னாரு. और इस बात को जान के परमेश्वर कहते हैं, அவ அப்ப அழுதுகிட்டே நிக்கிறா. और वो रोते हुए वहां पे खड़ी है। ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு, और परमेश्वर ने एक शब्द उससे कहा, நான் உன்னை நியாயந்திருக்கதில்லை, मैं तेरी न्याय नहीं करूंगा, இனி பாவம் செய்யாத போ. अब से लेके तू पाप ना कर करके कहते हैं। இந்த வார்த்தையை அவர்கிட்ட சொன்னாரு. और इस शब्द को, इस वचन को वो उनके पास कहते ஐயா हैं। எல்லாரும் பாவிதான் ஐயா, எல்லாரும் குற்றவாளி தான். और हर एक जन क्या है, दोषी हैं, पापी हैं, யார் உண்மையானவங்க கிடையாது कोई भी सच्चा नहीं है, ஆண்டவரை தவிர. केवल परमेश्वर के। நீங்க மனம் மாறிட்டீங்க, यदि आपने मन फिरा நீ लिया மனம் है, திரும்பிட்டீங்க, यदि आपने मन फिरा लिया ஆண்டவர் है, வாழ்க்கை சந்தோஷத்தை தந்துட்டாரு, और परमेश्वर ने आपके வாழ்க்கையில जीवन ஒரு में ஆறுதலை आनंद दिया தந்துட்டாரு, है, एक संतुष्टि को दे दिया है வியாதி परमेश्वर உன் விட்டு எடுத்து போட்டாரு, ने। और बीमारी को आपके जीवन से इन्हें परमेश्वर ने व्याधि हटा वरा दिया दे। है। अब से लेके बीमारी नहीं आएगा, நீ சாட்சியாய் வாழு, और आप गवाही के रूप में जिए, மகிமையாய் வாழு. महिमा के साथ जिए। அவ்வளவுதான். அவருக்கு வந்த சந்தோஷம் எப்படி வந்திருக்கும்? और बस इतना ही, उनके पास एक आनंद आया, वो எவ்வளவு किस प्रकार का आनंद சந்தோஷப்பட்டிருப்பாரு. होगा, कितना आनंदित हुए होंगे। ஏன்னா ஆண்டவர் அவ்வளவு பெரிய தெய்வம்.
क्योंकि परमेश्वर इतना महान परमेश्वर இன்னைக்கு है। உன் வாழ்க்கையில் எத்தனை போராட்டம் கஷ்டங்கள் கண்ணீர் இருந்தாலும் ஒருத்தரும் மாற்ற முடியாது. और आज आपके जीवन में कई किसी भी प्रकार के दुख संघर्ष कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई भी व्यक्ति क्या है उस बात को आपके जीवन में बदल नहीं सकता है। உன் புருஷன் மாற்ற முடியாது, आपके पति जो है उस बात को बदल नहीं सकते மனைவி हैं। மாற்ற முடியாது, आपके पत्नी बदल नहीं सकते हैं, பிள்ளைகள் மாற்ற முடியாது. आपके बच्चे बदल नहीं सकते ஏன்னு हैं। கேட்டா நீ சந்தோஷமா வாழ்ந்த உண்மையை வாழ்ந்தா பிள்ளைகள் ஆண்டவரால் பாதுகாக்கப்படுவாங்க. और यदि आप आनंद के साथ छुटकारे के साथ जीते हैं तो आपके बच्चे क्या है सुरक्षा के साथ உன் जिएंगे। பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையை ஆண்டவரே பொறுப்படுத்திக்கிடுவாரு. और परमेश्वर क्या है स्वयं आपके बच्चों के जीवन का जिम्मेदारी ले लेंगे। ஒரு மனுஷன் பொறுக்கெடுக்க வேண்டாம், और कोई भी मनुष्य के पीछे जाने की जरूरत ஆண்டவரே नहीं है। பாதுகாத்துக்கிடுவாரு. स्वयं परमेश्वर ही क्या है सुरक्षा देके இன்னும் அழைத்த संभालेंगे। தெய்வம் உண்மை உள்ளவர். क्योंकि जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है நீ वो தேவனுக்கு विश्वास வாழும்போது, योग्य है। தேவனுக்கு வைராக்கியம் வாழும்போது, जब आप परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर के लिए निर्णय लेके जब आप जीते என हैं। வேதத்தில் வாசி இஸ்ரவேலை காக்கிறது உறங்குவதும் இல்லை தூங்குறதும் இல்லை. और क्योंकि हम वचन में देखते हैं कि इजराइल को जो सुरक्षा करने वाला परमेश्वर कभी सोता नहीं है, कभी ये नहीं करता है। உன்னை காக்கிற ஒரு நாள் உறங்க மாட்டார். और जो परमेश्वर आपको सुरक्षा देते हैं वो कभी नहीं सोते हैं। உன்னை பற்றியே கவலைப்படுவார். वो आपके बारे में चिंता करते रहते என் हैं। மகளுக்கு இது வேணும், और मेरी बेटी को ये जरूरत என் है, மகனுக்கு இது வேணும், और मेरे बेटे के लिए ये जरूरत है, என் பிள்ளைகளுக்கு இது வேணும். और मेरे बच्चों के लिए ये உன்னை जरूरत பற்றியே है। சிந்திப்பார். और इस बारे में आपके बारे में वो நீ सोचते ஆண்டவருக்காக रहेंगे। வாழும்போது जब आप परमेश्वर के लिए जीते हैं। இன்னைக்கு அந்த மனுஷன் ஆனந்தூர்ல சாட்சியா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு. आज वो व्यक्ति क्या है आनंदपुर में गवाही के रूप में जी रहे हैं। மனைவிட்ட போய் சொன்னாரு. और अपनी पत्नी के पास वो जाके कहते हैं। அந்த மனைவி சந்தோஷப்பட்டாங்க. और पत्नी जो है बहुत ही அவர் आनंदित செஞ்ச होते हैं। தப்பெல்லாம் மனைவிட்ட போய் அறிக்கையிட்டாரு. और जो भी गलतियां उन्होंने किया உனக்கு उसे விரோதமா जाके अपनी இப்படிப்பட்ட पत्नी के காரியத்தை पास अंगीकार பண்ணிட்டேன், कर देते हैं। உனக்கு விரோதமா பாவத்தை பண்ணிட்டேன், और तेरे विरोध में मैंने ऐसा पाप कर ஆண்டவர் दिया எனக்கு है। இப்படி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் வந்துச்சு, और इसलिए मुझे ऐसा ही ஆனா दंड ஆண்டவர் मुझे எனக்கு मिला। விடுதலை கொடுத்துட்டாரு. परंतु परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दे दिया है। நம்ம ரட்சிக்க தெய்வம் அவர் ஒருத்தர் தான். और हमें उद्धार देने वाला छुटकारा और देने रक्षक वाला देव परमेश्वर और एक ही वो है। वो ही एक ही परमेश्वर है। வேதத்தில் வாசிக்கும் போது और जब हम वचन में पढ़ते हैं லூக்கா 19 வாசி பார்த்தீங்கன்னா और लूका रचित सुसमाचार उसकी 19वीं अध्याय में जब हम देखते हैं ஆண்டவர் எரிகோலிருந்து எருசலேம் போயிட்டு இருக்கார். और जब प्रभु यीशु मसीह जो है एरिगो से यरूशलेम को जब जाते हैं ஒரு மனுஷன் சகீடு ஒரு மனுஷன் और सगाई करके एक व्यक्ति था। அவன் ஆண்டவர் பார்க்க ஆசைப்படுறான். वो चाहता था कि वो परमेश्वर को देखे, ஆண்டவர் பார்க்க ஆசைப்படுறான். वो चाहता था कि वो परमेश्वर को ஆண்டவர் देखे। பார்க்கணும். और उसका पास ये चाहता कि किसी न किसी रूप से वो परमेश्वर को देख எப்படி ले। பார்க்குது? कैसे मैं देखूं? ஆனா அவனுடைய பாவம் உன உணர்த்துது. परंतु उसका पाप क्या है उसे इस बात को ஆண்டவர் வந்து बताता है। போற வழியில ஒரு காட்டத்தி மரம் இருக்கு. और जब वो परमेश्वर जिस राह से जा रहे थे वहां पे एक पेड़ था। இன்னைக்கும் காட்டத்தி அங்க இருக்குது. இன்னைக்கு நான் 3 முறை போய் பார்த்தேன். और मैं 3 बार जाके उस पेड़ को मैंने देखा है। இன்னைக்கு உண்மையான வரலாறுனா கிறிஸ்தவம் தான், வேற எதுவும் கிடையாது. और सच्चा एक इतिहास क्या है वो मसीह जीवन या मसीह जो वचन में लिखा हुआ है वही एक सच्चा इतिहास है। இது புராண கதை கிடையாது. ये कोई कहानी नहीं है। உண்மையாய் ஆண்டவர் வழி நடத்தக்கூடிய ஒரே வேத பாடம் இதுதான். और सच्चे रूप से एक सच्चे मार्ग में हमें अगुवाई करने वाला एक ही वचन है, वो परमेश्वर का இன்னைக்கு वचन வழி है। உன் குடும்பத்தை வழி நடத்தக்கூடிய காரியம் இது ஒண்ணுதான். और आज आपके परिवार की अगुवाई करने के लिए एक किसी बात की जरूरत है तो वो क्या है वचन உன் है। குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய புஸ்தகம் இந்த ஒண்ணுதான், வேதம் தான். और वचन ही है जो आपके परिवार को आशीष लेके நீ आ सकता வேதத்தின்படி है। வாழ்ந்தன்னா, और जब आप वचन के अनुसार जीते हैं வேதத்தை கை கொண்டு வாழ்ந்தன்னா, और जब आप वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதத்தை மாய்க்காதவன் ஆண்டு சொல்றாரு. और वचन कहता है परमेश्वर कहते हैं आपके विरोध में कोई भी हथियार क्या है खड़ा नहीं होगा करके। வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. और बीमारियां या कोई भी संघर्ष क्या है आपके पास नहीं आएगा करके। வேதத்துல வாசிக்கும் உபாகம் 7:15 வாசிக்கும் போது और उपागम में हम जब हम देखते हैं सबोपदेश में जब हम देखते हैं எகிப்திற்கு வரப்பண்ணிய கொடிய ரோகங்கள் உன்னை அணுகுவதில்லை. और मिस्र देश में जो बीमारियां आया था वो आपके पास नहीं आएगा करके ஒரு कहता நாள் है। அணுகாது. एक भी कभी भी नहीं आएगा ஆண்டவர் करके। உனக்கான யுத்தம் பண்ணுவார். और परमेश्वर आपके लिए युद्ध நீ சும்மா करेंगे இருப்பீங்க. और आप क्या है शांत बने ஒருவருக்கு रहेंगे। குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம். किसी भी बात को लेके आप चिंतित ना எல்லாம் रहें। ஆண்டவர் பார்த்துக் கொள்வார். सब कुछ परमेश्वर आपके लिए தேவனுடைய देख பர்வத்தை लेंगे। எல்லாமே பார்த்துக் और கொள்ளப்படும். परमेश्वर क्या है हर एक बातों को आपके लिए देख இன்றைக்கு लेंगे। நம்ம நடத்துகிற தெய்வம் और आज जो अगुवाई आपको करने वाला परमेश्वर जो है மனுஷன் பார்க்க வாரா. और एक मनुष्य देखने के लिए आता है। ஆண்டவர் எரிகோலிருந்து எருசலேம் போயிட்டு இருக்காரு. और जब परमेश्वर जो है यरीहो से यरूशलेम को जा रहे அவன் थे காட்டத்தி மரத்துல ஏறுறான். और वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता அவர் है। வரதுக்கு முன்ன மரத்துக்குள்ள ஏறின்னு பார்த்து जब यीशु मसीह आ जाए उससे पहले क्या है वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ஏறி அந்த கொலைக்குள்ள உட்காந்து
அவர் வர்ற வழி அப்படியே எட்டி பார்க்குறான். और वो तुरंत उस पेड़ पे चढ़ के एक थैली में बैठ के वो क्या है जहाँ से प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे उस मार्ग की ओर अपनी नजर को लगाए देखता அவர் है। சகல உலகத்தையும் படைத்தவர். और परमेश्वर यीशु मसीह जो है सारे संसार का रचना करने वाले அவருக்கு परमेश्वर மறைவான है। சிருஷ்டி ஒன்று இல்லை. और उनके नज़र में कोई भी ऐसा सृष्टि नहीं है जो उन्होंने अनदेखा या बनाया नहीं या उसकी उनकी जान पहचान में नहीं है। அந்த ஆண்டு பார்த்தார், கீழே பார்த்து சகிவே और वहाँ पे उस पेड़ के पास आके परमेश्वर कीड़े- यीशु मसीह कीड़े सहाय इरंग- को देख के कीड़े कहते इरंगे बा। हैं तू नीचे उतर आ, இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் தங்கணுடாங்கிறார். आज मैं तेरे घर पे वास करूंगा कर। எல்லாரும் சொல்றாங்க सारे लोग कहते हैं இவன் அயோக்கிய, ये गंदा व्यक्ति है, துன்மார்க்க, ये पापी है, ஏமாத்துக்காரே, ये धोखा देता है सभी को, கந்து வெட்டி கொடுக்கறவன், ये चुंगी लेने वाला है, எத்தனையோ குற்றங்களை சாட்டுறாங்க. और कई सारे दोष को उसके ऊपर वो डालते हैं। கீழே இறங்கி வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னா, और जब वो नीचे उतर आता है प्रभु यीशु मसीह उससे एक शब्द कहते हैं, ஆண்டவரே वो प्रभु यीशु मसीह से நான் कहते हैं, யாரிடமா அநியாயமா வாங்கினது உண்டானால் वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह यदि मैं किसी के विरोध में पाप करके या गलत रूप से कुछ भी मांगा हूँ या लिया हूँ तो நான்கத்தினே திருப்பி கொடுக்கேன். मैं 4 गुना उन बातों को उसे लौटा दूंगा करके। ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा இவனும் आपने जानते हैं। ஆபிரகாமுக்கு குமாரனாயிருக்கிறானே, और वो कहते हैं ये अब्राहम का संतान हो चुका है, இழந்து போனதை தேடவும் और जो खोया हुआ है उसे ढूंढने के लिए ரட்சிக்குமே और उद्धार देने के लिए மனுஷன் உலகத்தில் வந்தார். और मनुष्य के रूप में वो उतर எந்த आए। காரியத்தை இழந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயோ, और जिस बातों को खो के आप जी रहे हैं, எந்த காரியத்தில் கண்ணீரோடு நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயோ, और जिस विषयों के लिए आप आंसुओं के साथ जी रहे உனக்கு हैं, திரும்ப கொடுப்பார். उस बातों को परमेश्वर आपको दोबारा लौटाएंगे। இன்னைக்கு சில குடும்பங்கள பிரச்சனை, आज कई सारे परिवार में कई சில सारे குடும்பங்கள समस्याएं, கண்ணீர், कई सारे परिवार में आंसू हैं, நல்லது எடுத்துக்கிட்டாங்களேன்னு நினைப்பாங்க, நல்ல பொருள் எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு தரலின்னு நினைப்பாங்க. और ऐसा सोचते हैं कि अच्छे बातों को उन्होंने ले लिया करके और बुरी बातों को हमें दे दिया, ஆனா ஆண்டவருக்கு போதுமானவராய் இருப்பார். परंतु परमेश्वर आपके लिए काफी रहेंगे। வேதத்துல வாசிக்கும் போது, और वचन में जब हम पढ़ते हैं ஆதியாகமம் 13ஆம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது, और उत्पत्ति के किताब उसकी 16वीं अध्याय को जब हम देखते हैं, ஆபிரகாம் கூட அண்ணனுடைய அண்ணன் மகன் லோத்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான். और अब्राहम के साथ लोत जो है जी रहा है, லோத்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஆபிரகாமுக்கும் மந்த மேய்ப்பருக்கும் லோத்துடைய மந்த மேய்ப்பருக்கும் பிரச்சனை. और जब लोत अब्राहम के साथ जी रहा था और लोत के पास जितने भी सेवक थे जो चराई करने वाले थे, और अब्राहम के पास जितने भी सेवक थे जो चराई करने वाले थे, चरवाहे थे, उनके बीच में लड़ाई हो जाता है। அப்புறம் ஆபிரகாம் லோத்துல சொல்றாரு, और तब अब्राहम लोत से कहते हैं, நம்ம சகோதரர்கள், और हम जो है भाई हैं, நமக்கு பிரிவினை வேண்டாம், और हमारे बीच में कोई भी உனக்கு भेदभाव இஷ்டமான नहीं இடத்தை எடுத்துக்கோ, है, और तुझे जो पसंद है जो चाहिए वो तू ले ले, எடுத்துக்கிட்டு மிச்சம் எடுக்க நான் எடுத்துக்கிறேன்றான். और तू जो ले लेगा उसके बाद जो भी बचा कोचा होगा वो मैं ले ஆனா लूंगा। லோத்து परंतु लोत जो है யோர்தான் நதி ஓரமா உள்ள செழிப்பான இடத்தை எடுத்துக்கிட்டான். और योर्दन नदी के और जो हरी भराई जो जगह था उसे वो ले लेता ஆடு है। மாடுகளுக்கு செழிப்பா இருக்கும், ஆடு மாடுகளுக்கு வசதியா மேய்க்கலாம், தண்ணி கிடைக்கும் சொல்லி செழிப்பான எடுத்துக்கிட்டான். और बैल बकरी के लिए अच्छा चराई मिलेगा करके अच्छा एक अच्छा भूमि को वो क्या है, पानी भरा हुआ भूमि को वो क्या है वो अपने लिए चुन लेता है। ஆனா ஆபிரகாம் எதை குறிச்சும் கவலைப்படல. परंतु अब्राहम किसी भी बात को लेके चिंतित नहीं होता है। ஆண்டு சொன்ன வார்த்தை और परमेश्वर ने जो उसे कहा, ஆதியாகமம் 18ஆம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது, और उत्पत्ति के किताब उसके 18वें अध्याय में, ஆபிரகாமே अब्राहम பயப்படாதே, तुम मत डर, நான் உனக்கு துணையும் मैं तेरे साथ रहूंगा மகா கேடகமாய் இருக்கிறேன் और சொன்னார். मैं तेरे लिए ढाल बन के रहूंगा। ஆனா எதை குறிச்சும் கவலைப்படல. और इसीलिए वो किसी भी बात को लेके चिंतित சில नहीं होता है। சில காரியங்கள் இருக்கும்போது வருத்தப்படக்கூடாது. और जब कुछ बातें होता है हमें उन बातों को लेके चिंतित नहीं ஆண்டவர் होना है। எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிடுவாரு. परमेश्वर हर एक बातों को நீ देखेगा, அநியாயம் மட்டும் வாழாத, और आप जो है गलत राह में ना जिए, தப்பா வாழாத, गलत ना जिए, அடுத்த சொத்தை எடுக்கணும்னு ஆசைப்படாத, और दूसरों को संपत्ति को ले ले அடுத்த ऐसा ना பணத்தை जिए, எடுக்கணும்னு ஆசைப்படாத. दूसरों के धन दौलत को அந்த ले ले பணம் ऐसा உன்னை ना ஆஸ்வதிக்க जिए, முடியாது. वो आपको आशीष அந்த नहीं பணம் करेगा। வாழ வைக்காது. वो धन दौलत आपको சாபம் சாபம் வீட்டு வாசப்படியில் படுத்திருக்கோம். वो क्या है एक श्राप है, वो क्या है आपके घर के दरवाजे के सामने बैठा நீ रहेगा। விட்டு கொடுக்க மனப்பான்மையோட வாழு, और जब आप दे के जीना शुरू करेंगे, தேவனோட வாழு, தேவன் எல்லா காரியமும் வாய்க்க और செய்வார். जब आप परमेश्वर के संग मिलके जब आप जीना शुरू करेंगे, परमेश्वर हर एक बातों को தேவன் आपको देंगे। நிச்சயமாக உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर जीवन के साथ आपको आशीष உன்னை करेगा, கைவிடவே மாட்டார். कभी आपके हाथ को नहीं ஒரு छोड़ेगा, நாள் உன்னை கைவிட மாட்டார். एक भी दिन या कभी भी आप நீ தேவனை परमेश्वर சார்ந்து को हाथ नहीं வாழும்போது, छोड़ेंगे। जब आप परमेश्वर के सहारा के साथ जब आप தேவனுக்கு जीते हैं, சாட்சியாய் வாழும்போது, जब परमेश्वर के लिए गवाही के रूप में தேவன் जिएंगे, நம்மை ஆசீர்வதிக்க தெய்வமா இருக்க. परमेश्वर क्या है हमें அதை आशीष करने மனதில் के लिए வைத்து काबिल வாழணும், है। அதை மனதில் வைத்து வாழணும். और इस बात को हमें अपने मन पे रखे हुए हमें अपनी जीवन को बिताना है। கடந்த சில தினங்கள்ல और बीते हुए कुछ दिनों में எனக்கு ஏஜ் 74 ஆயிடுச்சு. और मैं जो है
74 ईयर्स का हो गया வீட்டில் யாரும் என்னை வெளியே அனுப்புறதில்லை. और घर के बाहर भी कोई मुझे देखते नहीं है உண்மையை சொன்னால் வெளியே அனுப்ப மாட்டாங்க. और सच बताऊं तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता है கிளம்புறேன்னு ஃபேக்ட்ரிக்குள்ள போனேன். और मैं फैक्ट्री जा रहा हूं करके मैं निकल जाता हूं பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் நிறைய கிடக்கு. நிறைய பேர் வேலை செய்து 100 பேருக்கு மேலே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. कई सारे प्लास्टिक कवर है, पॉलीथीन है, कई सारे हजारों के लोग जो है काम करते हैं கவர் வழுகி நான் விழுந்துட்டேன் பின்னால. और उस पॉलीथीन से क्या हो गया मेरा पाँव फिसल के मैं नीचे गिर பிள்ளைகள் गया ஓடி வந்து என்னை தூக்கி விட்டாங்க. और कई सारे लोग आके मुझे उठाए உடனே சொன்னாங்க நான் அம்மாவுக்கு சொல்லிடாத. और तुरंत उन्होंने क्या किया हम माता जी को बता दे तो मैंने कहा उन्हें मत बताओ சொன்னா करके என்ன விட மாட்டாங்க. यदि वो आप बता देंगे तो वो मुझे बाहर आने नहीं கடவுள் देंगे பார்த்துக்கு வேற அவ்வளோதான். और परमेश्वर देख लेंगे बस इतना ही काफी இன்னைக்கு है கொஞ்சம் வலி, और आज थोड़ा दर्द है நடக்க முடியல, चल नहीं पा रहा हूँ படியேற முடியல. और सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पा நான் रहा இன்னைக்கு हूँ எப்படியும் திருவனந்தபுரம் போறணும். और किसी न किसी रूप से आज मुझे त्रिवेंद्रम जाना है திருவனந்தபுரம் போய் மிட் நைட்டில் கன்னியாகுமரி போகணும். और त्रिवेंद्रम जाके और रात को मुझे क्या है कन्याकुमारी पहुंचना என் है மகள் அங்கே காத்திருப்பா எனக்கு. और वहाँ पे मेरी बेटी मेरे लिए इंतजार कर रही அவ होगी கூட தங்கிட்டு விடிய காலம் எழும்பி நான் எங்களோட டைசன் ஆஃபீஸில் லேசு கட்டியா இருக்கேன். और वहाँ पे उनके साथ रात को बिता के सुबह सुबह मेरे डायसिस जो है वहाँ पे जाना है मुझे ஆஃபீஸ் சூப்பரண்ட் ரிட்டையர்ட் ஆகிறாரு. और वहाँ पे ऑफिस जाके वहाँ पे काम को करना அவருக்கு है நான் வழி அனுப்பணும். और वहाँ पे जो दफ्तर में काम कर रहे हैं उनके लिए एक मार्ग को करना நான் है போய் தான் தீரணும். और मुझे जाना ही ये अवश्य है சாயந்தரம் 4:10 ஃப்ளைட் அப்படி சென்னைக்கு போகணும். और शाम को 4:10 की फ्लाइट को पकड़ के दोबारा चेन्नई पहुँचना है சென்னைக்கு போய் தான் தீரணும், வேற வழி இல்லை. और चेन्नई मुझे जाना ही है कोई और रास्ता नहीं है मेरे लिए செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் எங்கள் ஸ்கூலில் ஒரு ஃபங்க்ஷன், பெரிய ஃபங்க்ஷன். और मंगलवार को सुबह स्कूल में एक बड़ा सा फंक्शन है நான் தான் கரஸ்பாண்ட். और मैं करस्पॉन्डेंट हूँ நான் தான் இருக்கணும். और मुझे वहाँ पे रहना है मौजूद होना है அப்போ ஆண்டு எல்லாத்தையும் காரியத்தையும் பார்த்துக்குவான். சாதனை ஓட்டம் நம்ம ஓட்டது ஓடலாம். और परमेश्वर सारी बातों को देख लेंगे ऐसा सोच के हम क्या है अपनी दौड़ को दौड़ सकते ஒரு हैं வாழ்க்கை கடவுளுக்கு வாழணும். और एक ही जीवन है उस जीवन को हम परमेश्वर के लिए बिताएं ஊழியத்தை நிறைவேற்றணும். और परमेश्वर के सेवकाई को पूरा करें சாட்சியா வாழணும். गवाही के रूप में हम जिए மகிமையான வாழ்க்கை வாழணும். एक महिमा भरी हुआ जीवन हम जिए கடந்த முறை இதே மாதிரி தான் வெள்ளி சனி ஞாயிறு 3 நாள் களக்காடுல மீட்டிங். और इसी प्रकार गुरुवार और बाकी शनिवार और रविवार को 3 दिन का मीटिंग था இது போல எத்தனையோ பங்கு கூட்டம், 20 பங்குக்கு மேல பெரிய கூட்டம். और इसी प्रकार 20 गुना जो बड़ा भीड़ था वहाँ पे ஒரு சர்ச் பிரதிஷ்டை பண்ணோம். एक चर्च का उद्घाटन था वहाँ पे நம்ம ஓட்டமே கடவுளுக்காக ஓடணும். கடவுளுக்கு மகிமையா வாழணும். மகிமையான வாழ்க்கை வாழணும். இதுதான் ஓட்டம். और हमारा दौड़ ऐसा दौड़ है कि हम क्या है परमेश्वर के लिए महिमा के साथ जिए இப்படி வாழும்போது தான் और जब हम ऐसा जीते हैं நம்ம ஒன்றும் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் வந்தோம். हम बिना किसी बातों के हम क्या है ஒண்ணுமே संसार पे இல்லை, आए ஒண்ணுமே இல்லை. हमारे पास कुछ नहीं था சாப்பிடவே வழி இல்லை, खाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं ஒன்றுமே था இல்லாம தரித்திரமான நிலையில வந்தோம். और बहुत ही गरीबी में हम क्या है आए காலில் हैं போட செருப்பும் கிடையாது, और पाँव में पहनने के लिए चप्पल नहीं था ஒரு டவுசருக்கு மேல வேற டவுசர் கிடையாது. एक ट्राउजर के अलावा कोई और ट्राउजर नहीं था 58 வருஷத்துக்கு முன்னால. और 56 साल पहले ஆனா ஆண்டவர் இன்னைக்கு எவ்வளவு நம்மளை உயர்த்திருக்கிறார். और परंतु अब क्या है परमेश्वर ने मुझे ऐसा ऊंचा उठाया है உயர்த்தது மாத்திரமல்ல, ना केवल परमेश्वर ने ऊंचा उठाया உன்னை है ராஜாக்களும் ஆசனமாக்குறேன்னு சொன்ன தெய்வம் और मुझे राजा बनाएगा जो परमेश्वर ने मुझे कहा है நம்மளை கைவிடவே மாட்டார். उसने कभी हमारे हाथ को नहीं அவருக்கு छोड़ेंगे தெரியும் और वो जानते हैं என்னால என்ன வேலை நடக்கணுமோ அந்த வேலை நடத்தி தான் தீரணும். அவருக்கு और தெரியும். मेरे द्वारा जो काम को करना है उस बात को करके ही परमेश्वर मुझे छोड़ेंगे அந்த வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கும்போது और उस जीवन के लिए जब हम समर्पण करेंगे என் கண்ணீரை காண்கிறார். परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखेंगे என் குடும்பத்தின் பிள்ளைகளை பார்க்கிறார். और मेरे परिवार में मेरे बच्चों को संभाल लेंगे வேதத்தில் வாசிக்கமில்ல, और जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं சங்கீதம் 128 வாசிக்கும் போது और वचन संहिता 128 को जब हम देखते हैं கர்த்தருக்கு பயந்து परमेश्वर का भय मान के அவர் வழி நடக்கிறவனோ और उसके मार्ग में जो चलता है அவன் பாக்கியவான். और वो धन्य है உன் கைகளில் பிரயாசத்தையும் சாப்பிடுவாய். और वहाँ पे कहते हैं अपने हाथों के फल को तू खाएगा உனக்கு करके பாக்கியம் நன்மை உண்டாயிருக்கும். और तेरे लिए भलाई उत्पन्न होगा உன் மனைவி வீட்டில் கனிதும் திராட்சை செடியை போல இருப்பாய். और तेरे पत्नी और बच्चे जो है अंजीर के पेड़ के समान उसके समान जो है फल देने वाले உன் रहेंगे பிள்ளைகள் பந்திய செடி ஒலிமர கன்றுகளை போலும் இருப்பார்கள். और तेरे बच्चे जो है ऑलिव ट्री जो है उसके समान क्या है वो क्या है इर्द गिर्द में बने கர்த்தருக்கு रहेंगे பயப்படுவன் சிவிதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். और परमेश्वर के भय रखने वाले मनुष्य इस प्रकार आशीष को पाते கர்த்தர் हैं சீயோனை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर सियोन से लेके आपको நீ आशीष ஜீவன करेगा। நாளில் எருசலேமின் வாழ்வினை காண்பாய். और जब तक तू जीवित रहेगा तब तक यरूशलेम का जो जीवन है उसे देखेगा பிள்ளைகளையும் எருசலேமின் சமாதானத்தை காண்பாய். और तेरे बच्चे क्या है पीढ़ी भर पीढ़ी परमेश्वर के शांति को और आनंद को இந்த देखेंगे வார்த்தையை தந்திருக்கார்ல,
और इस जीवन को परमेश्वर இதுபடி ने दिया है। வழிநடத்தி வர்றாருல்ல, और इस वचन के இது अनुसार மாதிரி परमेश्वर आपकी பாதுகாத்து अगुवाई வர்றாருல்ல, करते हैं। இது போல பாதுகாத்து வர்றாருல்ல. और इस प्रकार जैसे वो आपको सुरक्षा देते आ रहे हैं। ஒரு காலத்துல एक समय पे ஃப்ளைட் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்ட मैं चाहता था कि फ्लाइट को देखूं மாட்டு வண்டியில ஏறி, और बैलगाड़ी जो था उसमें புளிய चढ़ के மரத்துல ஏறி, புளிய மரத்துல और ஏறி इमली के पेड़ पे चढ़ के ஃப்ளைட் பறக்கதை பார்ப்போம். और फ्लाइट जब उड़ता है उसे हम देखते थे। இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் அடிச்சுத்த வச்சிருக்காரு. आज संसार भर में घूमने के लिए परमेश्वर ने मुझे वो உலகம் முழுவதும் कृपा சுத்த दिया है। ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு. और आज क्या है, विश्व भर में मैं जाता हूँ। 1986 வருஷம் முதல் மாதம் இம்பர்டஸ் 86 சொல்லி இது ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு மாநாடு நடந்தது. 86 श्रीलंकाला 86 इम्पटेक्स 86 और सिम्पेटेक्स करके जो जगह है वहाँ पे 86 में एक सभा हुआ था। அப்போ பிரதர் தினனையா என்னை கூட்டிகிட்டு போனாங்க. और वहाँ पे भाई दिनकरन जो है वो लेके गए थे। 10 நாட்களோட நான் இருந்தேன். और 10 दिन मैं उनके साथ समय को 10 बिताया। நாட்களோட இருந்தேன். 10 दिन क्या है, मैं उनके साथ समय को ஃப்ளைட்ல बिताया। ஏறும்போது நான் பட்ட சந்தோஷத்தை பார்க்கணும். और जब मैं उनके साथ फ्लाइट में चढ़ा, जब आनंद मेरे अंदर उत्पन्न हुआ उसे आपको देखना था। இதுலயும் கால் வைப்போமா? और मैं ऐसा सोचता था क्या इसमें मैं पाँव रखूंगा இதையும் करके। கால் வைக்க ஆண்டு எவ்வளவு பெரிய கிருபை தந்துட்டாரு. और इसे देखने के लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा அவ்வளவு अनुग्रह मुझे சந்தோஷப்பட்டேன், दिया है। அவ்வளவு और சந்தோஷப்பட்டேன். इतना आनंदित मैं हुआ। அது ஒரு பெரிய பரிசுத்தவானோடு, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा परमेश्वर के सेवक के साथ உலக பிரசித்தி பெற்ற ஊழியக்காரனோடு, और विश्व भर में एक अच्छा परमेश्वर के दास जो है, जो नाम को रखते हैं, उनके संग தமிழக அப்போஸ்தலனோடு, और तमिलनाडु का जो प्रेरित है उनके साथ। ஆண்டவர் எவ்வளவு பெரிய தெரியுமா? और परमेश्वर कितना बड़ा है। இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையை ஆண்டவர் மாற்ற போகிறார். आज परमेश्वर आपको जीवन को बदलने உங்க वाले हैं। கஷ்டங்களை ஆண்டவர் மாற்ற போகிறார். परमेश्वर आपके कष्टों को बदल देंगे, கண்ணீரை துடைக்க போகிறார். आपके आंसुओं को पहुंच देंगे। எல்லாரும் எழும்பலாமா? आइए हम सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கலாமா? आइए हम ஆண்டவரே परमेश्वर கரம் की கொடுங்க अपनी नजर को ராஜான்னு கேட்கலாமா? लगाएंगे। ஆண்டவரே கரம் கொடுங்கன்னு கேட்கலாமா? आइए हम அந்த பிள்ளைகளை परमेश्वर से मांगे। ஆசீர்வதிங்கப்பா. இந்த பிள்ளைகள் எத்தனை பாடுகளோடு வந்திருந்தாலும், परमेश्वर ये जन எத்தனை कितने கஷ்டங்களோடு संघर्ष के साथ आए வந்திருந்தாலும், हुए हैं, कितने दुख के கண்ணீரை साथ आए காண்கிற हुए हैं। தெய்வம் இவருடைய आंसू को கண்ணீரை देखने वाला காணுங்கப்பா. परमेश्वर, आप इनके आंसू பிள்ளை को வாழ்க்கையில देखें। விடுதலை கொடுங்க. इनके जीवन में எத்தனை छुटकारा को பிரச்சனை दें। வேதனை இருந்தாலும் சரி, कितना भी परेशानियां क्यों ஒரு ना हो கண்ணீரை जाए, जीवन கண்டேன், में ஆகாரின் கண்ணீரை கண்ட கர்த்தர் இந்த பிள்ளைகளுடைய கண்ணீரை பாருங்க. आहार का आंसुओं को देखने वाले परमेश्वर, आप इनके आंसुओं को விடுதலை देखें। கொடுங்கப்பா. परमेश्वर पिता, आप इन्हें இந்த छुटकारा को பிள்ளைகள் दें। நட்சத்திரமாய் விளங்கட்டும் சாமி. परमेश्वर पिता, ये तारों के समान चमकने पाए प्रभु। குடும்பத்தில் வேறுபிரிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே. परमेश्वर पिता, परिवार में अलग किया हुआ உடைய परिवार அன்பை बने தெரிந்து प्रभु। கொண்ட பிள்ளைகளாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே. आपके प्रेम को जानने वाले परिवार बने உமக்கென்று प्रभु। வாழ கிருபை தாங்க. आप परमेश्वर पिता चंगाई के साथ சாட்சியுள்ள जीने वाले வாழ்க்கை परिवार கிருபை बनाएं। தாங்க. गवाही के साथ जीने वाले உண்மையான परिवार வாழ்க்கை வாழ बनाएं। கிருபை एक தாங்க सच्चा ஆண்டவரே. जीवन को जीने वाले परमेश्वर எல்லா போராட்டங்களும் மாற்றி போடுங்க. परमेश्वर पिता, हर एक संघर्ष को டெல்லி बदलें। நகரத்தில் ஆண்டவரே இந்த குடும்பங்கள் சாட்சியாய் இருக்க கிருபை தாங்க परमेश्वर ஆண்டவரே. पिता, इस दिल्ली शहर में एक गवाही के रूप மகிமை में ये தாங்கப்பா, परिवार जी पाए மகிமை प्रभु। தாங்க. நீ अपनी மகிமை महिमा தரக்கூடிய को दे தெய்வம் प्रभु। அல்லவா? अपनी महिमा को देने நீ वाले மகிமை परमेश्वर, आप தரக்கூடிய इनको தெய்வம் महिमा அல்லவா? दे। மத்தியான வேளைக்கு சமூகத்தின் நன்றி ராஜா. परमेश्वर पिता, इस दोपहर के समय के लिए प्रभु हम இந்த आपको பிள்ளைகள் धन्यवाद காத்திருந்த करते हैं। காரியத்தை அறிந்திருக்கீங்க. परमेश्वर पिता, ये बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं उन बातों को आप இவருடைய जानते விருப்பங்கள் हैं। என்னவோ, परमेश्वर पिता, इनकी இவருடைய जरूरत எண்ணங்கள் है என்னவோ और इनकी सोच विचार क्या அது है। வர்த்திக்கிச்சீங்கப்பா. परमेश्वर पिता, वो पूरा हो जाए ஒரு आप करें பிள்ளையாவது प्रभु। வெட்கப்பட்டு போகக்கூடாதப்பா. परमेश्वर पिता, एक भी जन ஒரு परमेश्वर பிள்ளையாவது पिता, விடுதலை இல்லாமல் செல்லக்கூடாது ஆண்டவரே. परमेश्वर पिता, एक भी जन परमेश्वर पिता बिना छुटकारे के ना என் जाने पाए प्रभु। சமாதானத்துக்கு தருவேன்னு சொன்ன தெய்வம் परमेश्वर पिता, आपने ऐसा कहा कि मैं अपनी शांति तुझे உன் दूंगा சமாதானத்தை करके। கொடுத்து காத்துக்கொள்ளுங்க. परमेश्वर पिता, आपकी शांति को देके प्रभु आप सुरक्षित रखें। மீதியான காரியத்தை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. परमेश्वर पिता, बाकी के सारे बातों को प्रभु आप உமக்கு संभाल लें। சித்தமானால், உமக்கு சித்தமானால் परमेश्वर पिता, यदि आपकी इच्छा हो तो இந்த ஆலயம் திறக்கப்படும் போது परमेश्वर पिता, जब ये कलीसिया का उद्घाटन होता है என்னுடைய பாரத பிரதமர் और परमेश्वर पिता, इस देश के जो प्रधानमंत्री है प्रभु, மோடிஜி ஐயா திறக்கிறதுக்கு நீங்க ஏற்ற கிருபை தாங்க. परमेश्वर पिता, आप इस सभा को देंगे कि मोदी जी जो है इस कलीसिया को खोलने पाए प्रभु। நாங்கள் அல்ல, परमेश्वर पिता, हम नहीं हैं, நீதான் காரியத்தை வாங்கி செய்த தெய்வம். परंतु प्रभु आप ही है उस कार्य को पूरा वழி करने நடத்தி वाले தாங்க. हैं। परमेश्वर पिता, आप उसकी अगुवाई करें। இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் ஜெயம் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। ஆமென். आमीन। ஆமென். आमीन।